Hello friends, in this video we'll be studying about mitochondria. So let us begin. Mitochondria are generally rod shape elongated structures. ये rod shape या कई कई जगह पे इनको sausage shape भी बोला जाता है. As you can see the structure, these are comparatively long and oval. So these are long rod shaped structures. They are commonly known as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell, we are studying this from earlier classes, school time से कि इनको powerhouse बोला जाता है because they produce energy. That means ATP production करते हैं. Earlier when they are discovered, they were known as bioblasts, but later on they were named as mitochondria. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलेज. इनको सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है क्योंकि इनके पास अपना डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. सो द सेमी ऑटोनॉमस रोल इनका ये है कि ये अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव रेप्लिकेशन मशीनरी. डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है, सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. Now we'll begin with the structure of mitochondria. Mitochondria consist of two membranes. दो membranes होती हैं, the outer membrane and the inner membrane. The outer membrane has three-layered membrane and is separated by a space of 6 to 8 nanometer. The inner membrane has number of infoldings which are called cristae or mitochondrial crest. As you can see in the diagram, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, देन हेयर इज़ एन इनर मेम्ब्रेन. और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्डेड है. देयर आर इन फोल्डिंग्स इन द इनर मेम्ब्रेन एंड दीज इन फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे. So these cristae, as you can see in this cristae, इनके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स बोलते हैं या F1 पार्टिकल्स बोलते हैं. यू कैन सी एन डायग्राम ऑफ द वन पार्टिकल ओवर हेयर. सो दीज आर द पार्टिकल्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस. यहाँ पे ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? F1 पार्टिकल में. एंड बाय विच प्रोसेस? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. we'll be discussing about this in another video or in another lecture, as this is not a part of this chapter. So the inner membrane has infolding जिनको हम बोलते हैं cristae. The fluid filled space between the outer and inner membrane is called intermembrane space. जो inner membrane और outer membrane के बीच की space है उसको बोलते हैं intermembrane space. Intermembrane space is also very important because although it is fluid but it also contain many specialized enzymes like adenylate kinase, nucleoside diphosphorokinase, etc. Now let us see what is mitochondrial matrix. So the inner membrane के अंदर वाला जो portion है that is mitochondrial matrix. It is dense and made up of proteinaceous material. यहाँ पे बहुत सारे enzymes और protein present हैं. The matrix is generally homogeneous but sometimes they may contain fine filamentous structure. So okay, the very important thing about matrix is कि इसके पास अपना DNA, because all the DNA and the ribosomes which is present over here is present in the matrix only. So matrix contain ribosomes, RNA and one or more molecules of circular DNA. An important characteristics of mitochondria. It is because of the presence of DNA and RNA and ribosomes that mitochondria are self-replicating. हमने पढ़ा था कि ये सेमी ऑटोनॉमस है क्योंकि ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, and all that is because of DNA, RNA and ribosomes. The enzymes involved in TCA cycle and fatty oxidation cycles are found in the matrix only, which is a very important function of mitochondria. Oxidation and reduction reactions यहाँ पे होते हैं due to which ATP जो है वो फॉर्म करता है या कन्वर्ट होता है ATP में. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज क्रिस्टे. क्रिस्टे हमने अभी देखा था डायग्राम में कि इनर मेम्ब्रेन की जो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स हैं, these foldings are known cristae. So it appeared to be covered with mushroom-like particles called F1 particles, elementary particles or oxysomes. These particles are small, stalked. यहाँ पे word stalked इसलिए बोला हुआ है क्योंकि ये particles are someone like this. ये head वाले part को हम F1 बोलते हैं और ये stalk वाले part को हम F0 बोलते हैं. तो इसको F0 F1 particle भी बोला जाता है. These contain enzymes like ATPase that is involved in oxidative phosphorylation. Since the inner membrane of mitochondria is the site of ATP production in the cell, greater the number of cristae, the larger surface area of ATP. Now,
माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है पावर हाउस. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस. उसका मेन फंक्शन है एटीपी सिंथेसिस करना. सो ऑब्वियसली एवरी सेल विल नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज. द सेल विच आर मोर एक्टिवली इन्वॉल्व या मोर active in their activity, या the cells which need more ATPs will definitely have more mitochondria than the other ones. Likewise, जो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एक्टिव हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं, उनमें क्रिस्टे का नंबर और क्रिस्टे का जो सरफेस है वो भी ज़्यादा होगा. क्रिस्टे वेरी इन नंबर एंड शेप. जनरली दे लाई पैरेलल टू वन अनदर और आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर फॉर्मिंग इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स. क्रिस्टे जो होते हैं वो इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स बनाते हैं. द नंबर ऑफ क्रिस्टे डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी. नाउ इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट का मतलब है, इफ दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन विच इज समवट फोल्डेड. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट क्यों बन रहा है? इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर ये क्रिस्टे पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर कर रहे होते लाइक दिस, तो ये कंप्लीट पार्टीशंस क्रिएट कर देते. तब हम उसको बोलते हैं कि वहाँ पे कंप्लीट कंपार्टमेंट बन रहे हैं. लेकिन ये इनकम्प्लीटली पार्शियली ही ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स. और इन्हीं के ऊपर फिर प्रेजेंट क्रिस्टे के सरफेस पे ही छोटे छोटे F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है which are involved in ATP synthesis. माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन फाउंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द रीजन ऑफ हाई. ये हमने डिस्कस कर लिया कि जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लाइक कार्डियक सेल्स, फ्लाइट मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जहाँ पे भी एक्टिव प्रोसेसेस ज़्यादा हो रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वहाँ पे एटीपी का नंबर ज़्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अक्रिंग इन द ऑर्गेनेली. इफ़ द एक्सटर्नल एडीपी कंटेंट इज़ लो और द रेस्पिरेटरी चेन इज़ इनहिबिटेड. अगर रेस्पिरेटरी चेन रुक गई है या एडीपी कंटेंट लो है, सी एटीपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी बनाने के लिए एडीपी चाहिए. अगर एडीपी ही नहीं है या एडीपी ही कम है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो डेफिनेटली एटीपी नहीं बन सकता. सो इन दिस स्टेट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज एन इनएक्टिव स्टेट और एन ऑर्थोडॉक्स स्टेट. इन दिस स्टेट मैट्रिक्स ऑक्यूपाइज द लार्जर एरिया. मैट्रिक्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि क्रिस्टल्स की जो नंबर या क्रिस्टल्स की जो सरफेस होती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है. हाउएवर वाइसा वर्सा होता है. अगर एटीपी प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है तो क्रिस्टे के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. क्रिस्टे की सरफेस, क्रिस्टे विल बी मोर इलोंगेटेड, वो ज़्यादा नंबर में होंगे. अगर क्रिस्टे की सरफेस ज़्यादा तो उसके ऊपर F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स भी ज़्यादा होंगे और उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस हो रहा होगा. उस स्टेज में हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं इट इज़ इन कंडेंस स्टेट और इट इज़ इन एन एक्टिव स्टेट. In the condensed state, the cristae are more randomly distributed and the intermembrane space remains greatly enlarged. So in the end, we will see at the functions of mitochondria. Mitochondria mainly दो ही functions में involved होता है. The one is respiration. It act as a site of respiration. जो भी TCA cycle या Krebs cycle है, it is taking place in mitochondria because all the enzyme necessary for the processes are present in the mitochondria only. So ATP synthesis takes place in mitochondria by the process of oxidative phosphorylation. And apart from that, mitochondria is also a site of fatty acid oxidation या फिर elongation of fatty acids also takes place in mitochondria. Hope you find this lecture useful. Thank you so much.